میں یاسمین رفیق ہمارے ساتھ ہیں، یاسمین رفیق کو لیتی ہوں. یاسمین رفیق ہالینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم یاسمین، خوش آمدید آپ کو میڈیا سیل پاکستان وومن اسپیشل میں. السلام علیکم آپ سب کو بھی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ہیئر. بالکل، میں یاسمین کو لینا چاہوں گی. جی یاسمین، آپ کیا کہیں گی 8 فروری کو جو فسطائیت ہوئی، جو بدعنوانی ہوئی، عوام کے حق خود ارادیت پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور جمہوری حق کو بھی پامال کیا گیا اور مستقل کیا جا رہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ سے وومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں اور آزاد کشمیر کو ریپریزنٹ کرتی ہیں فرانس میں. اس کے علاوہ آپ ممبر بھی ہیں وومن ونگ کی، تو پلیز بتائیے گا. جی بالکل. سب کے سامنے ہے کہ کیسے پاکستان میں جب الیکشن ہوا 8 فروری کو، تو پہلے تو انہوں نے پری ریگنگ بہت کی، رائٹ. ہمارا جو نشان بلہ چھینا گیا، ہمیں پابندیاں لگائی گئیں لائک وہاں کے لوگوں کو کہ آپ کوئی جھنڈا نہیں لگا اچھا سکتا. سوری میں نے جو ہے 2 خواتین کی ڈیزگنیشن کو جو ہے مکس کر دیا. سمینہ وومن رائٹس کی ممبر ہیں اور آپ وومن ونگ کی میں ہیومن رائٹس ممبر کی ہیں اور نیدرلینڈ سے یاسمین. جی 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 بالکل. اٹس اوکے، وی آل ورک فار آل دا سیم کازز ایٹ دی اینڈ. تو بتا رہی تھی کہ پری ریگنگ بہت ہوئی. پہلے تو انہوں نے ہماری جو پی ٹی آئی کا نشان لے لیا، پھر لوگوں کو کافی کنفیوز کیا کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ ہی نہیں کر سکتے. انڈیپینڈنٹ سارے ان کے ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو وہ دن ہے نا، وہ اس کو ہم کہتے ہیں دا بیلٹ باکس ریولوشن. ابھی کل بھی ہم ایک گروپ کے ساتھ اس پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے ہماری عوام نکلی اس دن، ٹھیک ہے. بے شک انہوں نے سارا کتنی مشکل نیٹ بند کر دیا، لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، مارا پیٹا بھی، سڑکوں پر آ کر لاٹھی چارج کی عوام پر. اس کے بعد بھی خواتین بھی نکلی، ہر ایج گروپ نکلا ماشاءاللہ سے. ایگزیکٹلی. بلکہ کل ہم جس گروپ میں ہم تھے تو اس میں ایک ہماری ڈاکٹر سندر ہے، وہ بتا رہی تھی کہ اور انہوں نے پری ریگنگ ایسے کی نا کہ انہوں نے ایڈریسز بدل دی، ڈیموگرافکس بدل دیے، پولنگ اسٹیشنز بدل دیے تاکہ لوگ کنفیوز ہو یا پہنچ نہ پائیں. تو وہ بتا رہی تھی سب کہ سے وہ پہلے تو ایک آپ دیکھیں کہ بلہ جو ہمارا انتخابی نشان تھا وہ اللیگلی انہوں نے جو ہے وہ لے لیا. اس کے بعد پھر ظاہر جو ہمارے ممبرس تھے کینڈیڈیٹ سے، ان کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے مختلف نشان جو پرووائڈ کیے، اس پر ان کو الیکشن لڑنا پڑا. سب سے بڑی تو یہ بالکل فسطائیت انہوں نے کی. بالکل جی بالکل. اور اس کے باوجود پھر لوگ نکلے اور عورتیں اسپیشلی خواتین، میں کہتی ہوں جو پی ٹی آئی کے لیے جو شعور ہمارے لیڈر عمران خان نے دیا ہے کہ پالیٹکس از سچ اے امپورٹنٹ تھنگ، اسپیشلی آلسو فار وومین، جو کہ ہاف آف دا پاپولیشن ہے نا، وومین اور مرد بالکل مور دین سیم ہاف. اینڈ دیئر ووٹ از ایکول. اتنا ہی کاؤنٹ کرتا ہے جتنا ایک مرد کا ووٹ ہے. تو پہلے تو اتنی خواتین نہیں لکھتی، لیکن اس دفعہ اتنی نکلی. اور بلکہ وہ بتا رہی ہے نا جو پری ریگنگ ہوا، تو ایک خاتون ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کی ساری فیملی ممبرس کو ڈفرنٹ پولنگ اسٹیشن دیے گئے، بٹ شی اسٹل مینجڈ کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ، اور وہ جب لاہور پہنچے اپنا ووٹ دینے، تو اٹ واز جسٹ 2-3 منٹس لیٹ. تو وہ ڈاکٹر سندر سے ہمارے ادھر یو ایس اے میں ہوتی ہیں، تو وہ ای سی پی آبزرور لگی ہوئی تھی. تو وہ بتا رہی ہیں کہ وہ اتنا ایک جنون اور پیشن ہم نے لوگوں میں دیکھا. سو دیٹ از دا بیوٹیفل تھنگ کہ ایک ریولوشن آیا اور لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ نون لیگ کو دینے جا رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ایکچولی وہ اندر جا کے انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا. سو لوگوں نے اپنی عوام نے اپنی بالکل آواز، اپنی جو پروٹیسٹ قسم کا وہ سارا کچھ انہوں نے اپنے ووٹ کے ساتھ تو بتا دیا. اور اتنے نمبر نکلے ہیں کہ نارملی تو ریگنگ اکثر وہ چھپا لیتے تھے، لیکن دس ٹائم دا نمبرز ور سو ہائی کہ وہ اتنے دن لگے ان کو بعد میں 45 کو 47 میں بدلنے میں کہ نون لیگ والے جیتے. حالانکہ ایک ہی بندہ جیتا ہے. 17 بھی غلط ہے، وہ بھی جھوٹ ہے کہ 17 لوگ جیتے. ایک بندہ ہی صرف جیتا نون لیگ میں، باقی سارا وہ بھی فیک تھا. اور آئی تھنک اٹس واز بیوٹیفل ریولوشن، جس تھینک میں یو. ہماری یوتھ جو ہے وہ ایکچولی
चमक रही थी उस दिन, लेकिन इन्होंने उनको ब्लैक डे में बदल दिया, उनका हक बिल्कुल छीन लिया। यास्मीन, मुझे लगता है सबसे पहले कि पाकिस्तान की जो हम पॉलिटिक्स देखते हैं ना, आई थिंक एक तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज वहाँ पे, एजुकेशन के भी लैक है ना, तो मगर नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर आल्सो लैकिंग ओवर देयर, एंड ना और इवन नॉट एथिक्स, क्योंकि हर वक्त वहाँ की पॉलिटिक्स, कोई भी शो देख लो, कोई भी आपस में लड़ रही होती हैं खातून, एक दूसरे को इल्जाम दे रही होती है, पर्सनल लेवल पे चली जाती हैं। एंड पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट दैट, पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक सर्विस। आपने खिदमत करनी है आवाम की, आप इसलिए पॉलिटिक्स में आती हैं ताकि आप मुआशरे को बेहतर करें, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, आप हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करें, आप उन चीजों पे फोकस करें ना, अपने अपने विजन पे, अपने अपने जो पॉलिसीज एक पार्टी लेकर आती है उस पर फोकस करें कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, प्लानिंग सही हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे उधर पता नहीं क्यों एक दूसरे की पर्सनल लेवल पे आ जाते, अटैकिंग, लेग पुलिंग, दैट्स दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दैट आर अगेंस्ट गुड एथिक्स, गुड वैल्यूज एंड नॉर्म्स, एंड आई थिंक वी आर मिसिंग दैट इन पाकिस्तान। तो वो हमारे इधर नहीं है। हमारे इधर पता है लोगों को कि पॉलिटिक्स मीन्स कि हम पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं, हम खिदमत कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब ही है यही है कि आप उस बंदे को चुनो जो अवाम के लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोच रहे और सबसे अच्छी पॉलिसीज ला रहे, जो कि अवाम को प्रोग्रेसिव, लाइक पीपल विल प्रोग्रेस, नॉट लाइक गो बैकवर्ड। इवन इफ हमारे यूरोप में इतना अच्छी तालीम है, उसके बावजूद वो हर वक्त सोच रहे होते हैं कि कैसे हमारे इकोनॉमिक को चलाना है, कौन सी जॉब्स की जरूरत है, कौन सी हमने ऑफर करनी है, कोर्सेज कौन से ऑफर करने, ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए वो पूरे हों। इस तरह की चीजें कम डिस्कस होती हैं पाकिस्तान में। पर्सनल लेवल पे आ जाए तो स्पेशली फिर अगर खातून, एक खातून है हमारे पाकिस्तान में, पर्दा भी है, इज्जत है, अगर उसको फिर आप अटैक करेंगे तो जाहिर फिर खवातीन हट जाती हैं वहां से, पाकिस्तान से, और वो हमें यहाँ पे फ्रीडम है, जो कि मैं समझती हूँ डिफरेंस। जी आपका बहन सारा यास्मीन, कुछ बोल लेती है, तो हमारा तो वैसे वो काफी कुछ उन्हें समझा भी दिया है। और वही बात है कि मेरे ख्याल से जो है ना, औरतों को जो जिस तरह शिरीन मज़ारी कितनी अच्छी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, उनको कितनी उन्होंने कितनी दफा उन्होंने मना किया कि मैं तो नहीं इनकी बातों में आऊंगी, लेकिन जब तक उन्होंने उनकी बेटी को ब्लैकमेल नहीं किया, बेटी के साथ हरासा नहीं करना शुरू कर दिया, देन शी गेव अप। ऐसे ही उन्होंने मुसर्रत चीमा साहिबा के साथ उन्होंने भी काफी शुरू में रेजिलियंस दिखाई, लेकिन उसके बाद जब उनके बच्चों पे आ गई बात, तो of course everybody would give up on that place, especially mothers. We have like हमारे बच्चे हमारे लिए सब कुछ है, तो अगर उनके थ्रू हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है that is, I don't understand इन लोगों की माइंड सेट। मुझे तो लगता है कभी कभी ये पागल खाने को इनको भेजना चाहिए, पता नहीं क्यों इस पैसा और पावर की लालच में अपनी आवाम के साथ क्या क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या मतलब हाउ डू दे रियली थिंक, उनकी क्या वैल्यूज हैं। मुझे तो उन कुछ समझ नहीं आती कि इतना पैसा भी है, इतना पावर भी है, उसके बावजूद दे वांट मोर मोर मोर। व्हेन आर दे गोना स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अवाम, और अवाम को जब उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे तभी पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और प्रोग्रेस करेगा ना। लेकिन अगर वो एक एलीट सिस्टम रहेगा कि उन्होंने बस ऐश करना और बाकी 90% जो है बेचारी अवाम गरीब वो बस मुश्किल जिंदगी गुजारे, वो कब तक चलेगा? ये तो नहीं, कभी ना जुल्म का निजाम तो नहीं चलता ना कभी भी। ठीक है, तो वो अल्लाह करे हमारा ये एक जो कहते हैं रेवोल्यूशन तो आया था, ठीक है, बट हम हमारे मैंडेट को उन्होंने चोरी कर दिया, और अभी भी हमें फाइट करने, लेकिन वी गोना फाइट फॉर हकीकी आजादी फॉर आवर पाकिस्तानी बैक एंड होम, बैक देयर। जी, एंड आई थिंक अल्लाह का शुक्र मैं हमें तायरा की फ्रीडम है तरफ उनके लिए आना आवाज उठाने चाहूंगी। की। लेकिन पीटीआई की ख्वातीन को रिग्रेट नहीं है, उन्होंने अपना काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिनको मैं जानती हूँ। बहुत हम निकले भी है, हमने वोट भी डाला है, हमने एहतजाज भी किया है, हमने रैली भी की है, हमने जनाब हर तरह के प्रोग्राम किए हैं यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसमें सफल भी हुए हैं। मतलब आप पेरिस में हर दूसरा घर जो देखेंगे वो पीटीआई का होगा इंशाल्लाह। मजा तो तब आता ओवरसीज के वोट्स आया ना होते। हाँ, ये वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने प्रोग्राम करना है तो इस पे करें कि हमें ओवरसीज के हाँ। वोटों का हक दिया जाए।
बिल्कुल सबसे बिल्कुल, और पहले इस पर हम इतने हाँ, नंबर जी में वो निकली है खातून, तो जो इसलिए हुकूमत आई थी, इन्होंने सबसे पहले काम ये किया था कि अपने केसेस माफ करवाए और ओवरसीज के वोट का हक खत्म किया। और इन्होंने ओवरसीज पे कितनी बकवासें भी की ख्वाजा आसिफ ने कि ये कौन होते हैं, ये तो बाहर बैठे हुए हैं। और क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग समझदार हैं, शऊर रखते हैं, बाहर के मुल्कों का सिस्टम देखते हैं, तो वो पाकिस्तान में भी वही सिस्टम चाहते हैं उन्होंने। और खान साहब ने जो इलेक्शन के लिए एक वो ऑटोमेटिक सिस्टम का कहा था कि हम वो रखेंगे ताकि रिगिंग ना हो, तो इन्होंने उसको भी जो है रिजेक्ट किया कि हम रिगिंग भी कर सकें और हम ओवरसीज को उसका हक भी ना दें। आते मसला साथ वही है ना, इन्होंने 2 दिन के अंदर ये काम किया था। लेकिन मसला फिर वही है, पाकिस्तानी 84% इलाकों की औरतों ने वोट डाला और इन्होंने फॉर्म 47 कर दिया। अगर हम यहाँ से भी वोट डालते हैं तो यही करते ये हैं। 45 और 47 का शऊर भी जो अवाम को आ गया, ये भी इमरान खान ने दिया, हमें तो पता ही नहीं था, फिर हमें पता ही नहीं था किसी को बिल्कुल कि पता ही नहीं 47 क्या है, मुझे 45 क्या आज है। तक याद है जब 45 फॉर्म की बात हुई और सबने अपने 45 फॉर्म्स की हिफाजत की और उसके बाद रिगिंग हुई, तो उसके बाद जो पहला जलसा हुआ था पीटीआई का, उसमें हलीमा आपी आई हुई थी और उन्होंने बड़े मतलब सब खुश थे ज़ाहिर कि ये एक बड़ी कामयाबी थी, और उन्होंने कहा कि अगर खान साहब हमें 47 का बताते तो हम 47 को भी बचा लेते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऑब्वियसली 45 फॉर्म का कभी किसी ने नहीं सुना था, और हमें तो ये भी नहीं पता था कि क्या होता है इलेक्शंस में, क्योंकि इस तरीके से कैंपेन कभी नहीं की गई थी जिस तरीके से, और वाकई ऐसी कैंपेन्स की अवामी सतह पर जरूरत है। और जो पता है आपको, देखा दुनिया पाकिस्तान ने। में हमने वोट नहीं कभी डाला था, लेकिन पेरिस में आके इतना शऊर हुआ कि वोट डालने जाना है। जिस तरह से यहाँ की ख्वातीन निकल रही थी, हमने भी जाके पेरिस में पहला वोट डाला। उसके बाद फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हो, एम्बेसी में जाना पड़े या पाकिस्तान जाना पड़े, हम वो वोट जरूर डालेंगे, हमारा हक है और हमारा फर्ज भी है। बिल्कुल। खुशी तो इसी अब बात ये की थी आगे कि धांधली ना हो इस ना, प्रोग्राम आगे में ना मैं एक और बात भी करना चाहूंगी, ये खत्म होने से पहले मैं चाह रही मेरे ये पॉइंट भी आ जाए कि आज के दिन हमारे यहाँ पे कश्मीर के लिए 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, एक रैली हो रही है और एक उनके साथ इजहार यकजहती का हो रहा है। लेकिन सॉरी टू से कि मैं ये प्रोग्राम इसलिए अटेंड नहीं कर सकूंगी क्योंकि मैं खुद आजाद नहीं हूँ, मैं मकबूजा पाकिस्तान की शहरी हूँ। पहले मुझे अपने आप को आजाद कराना है, उसके बाद मैंने दूसरों के हक की बात करनी है। मैं खुद आजाद नहीं हूँ, मेरे घर वाले वहां गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके मुंह पर स्काच लगा दी गई है। कोई अगर लाइक भी करेगा हुकूमत के बारे में किसी बात को, नया कानून पैका का पास हो गया, और कोई वहां पर सहाफी तंजीमें जो है बिके हुए लिफाफी सहाफी रह गए। तो जब हम खुद मकबूजा पाकिस्तान में है तो हमने कश्मीरियों के साथ कैसे उनका साथ देना है, या हमने इनके साथ हम कैसे साथ देंगे फलस्तीनियों का कि हम खुद उससे बदतर फिस्तायत गुजार रहे हैं, एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहां पर ना खवातीन को हकूक हासिल है, ना बच्चों को हकूक हासिल है, और जेलों में बंद कर दिया जाता है जानवरों की तरह। जब वो बाहर निकलते हैं तो ज़हनी तवाज़ुन खो चुके होते हैं। तो लिहाजा हमें सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बात करनी होगी। एक थोड़ा सा अभी आपने ये कहा है स्कॉच लगा दी जाती है, तो अभी ये कोयटा बलूचिस्तान का देखा, लोगों ने खुद टांके लगवा लिए अपने होंठों पे, अपने मुंह पे, खून देखे उनके। और मतलब इंसानियत हर जगह पिस रही है, इंसानियत पिस रही है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कौन किस फिरके से ताल्लुक रखता है, कौन किस शहर का है, किस मुल्क का है, बस इंसानियत की बात अच्छा, करें, और लेकिन जो कि पता है हमारी तरफ मेरे ख्याल से हमें जो हर एक थोड़ा सा इंसान के लिए, हर एक मुल्क के लिए हमें खड़ा होना, स्पेशली हम जो वुमेन यहाँ पे हैं। मैं पैलेस्टाइन के लिए भी हर रैली में जाती हूँ, ठीक है, और आजाद कश्मीर की हर रैली में जाती हूँ, क्योंकि भी जितने हम ज्यादा होंगे तादाद का बहुत फर्क पड़ता है। वो आप आवाज बनती है, स्ट्रॉन्गर बनते हैं आप लोग। डिफरेंट कंट्रीज मिलजुल के जब एक आवाज किसी और कंट्री के लिए उठाते हैं। और देखो, आपने अभी कहा कि खातन कहते हैं कि हमें जाना नहीं चाहिए था, हमारा इससे बेहतर था कि हम नहीं जाते, अपना वोट ना देते, जब उन्होंने उन्होंने अपने छीनना दिल ही की था। भड़ास तो लेकिन निकालनी है आप ना, वो उन्होंने कुछ निकली तो है, कहना ना, उसके अफसोस नंबर में करना है। निकली है, तो रिगिंग भी वाजा हुआ ना। अगर वरना वो ना निकलती तो वो 1-2 घंटों में वो रिगिंग कर लेते। लेकिन उनको 2-3 बल्कि पूरा हफ्ता लगा 47 को बनाने में, रिकॉर्ड दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया बिकॉज ऑफ द अच्छा वुमेन। ये